वेलकम टू सीड एकेडमी गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, सीड एकेडमी ने इनिशिएटिव लिया है कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑन जॉब एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर एक्सपर्ट टॉक्स। तो आज का थर्ड सेशन है, सेकंड डे। तो आज के हमारे स्पीकर है अमोल भोयर, जो सिविल इंजीनियर है भेल। तो सबसे पहले आप सबको भेल के बारे में सबको पता होगा कि भेल यानी कौन सी कंपनी है, क्या है। आप लिटिल बिट भेल का नाम सभी जगह सुने हो, लेकिन एक्चुअल में वो भेल के क्या क्या सेक्टर्स है, किस किस तरह है, सबसे पहले हम वो भेल के जो भी सेक्टर्स है वो हम देखेंगे। देन हमको उसके ऊपर जो भी भेल पे क्या वर्क चलता है, किस तरह है, और प्रेजेंट सिनेरियो जॉब का क्या है, किस तरह है, ये सब हमको इंजीनियर अमोल भोयर सर गाइड करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं कि भेल कंपनी कितनी बड़ी है और उसका एक्सपोजर कितना बड़ा है। सो गाइस प्लीज सी 1 मिनट। Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) is a success story of building India's self-sufficiency in engineering and manufacturing of heavy electrical equipment. In over 5 decades, we have installed more than 180 gigawatts of power plant equipment in India and abroad. Today, over 50% of India's total electricity is generated by the power plants installed by us. Not only power, BHEL is also engaged in design, engineering, manufacturing, constructing, testing, commissioning and servicing a wide range of products and services for the core sectors of Indian economy such as transmission, transportation, renewable energy, oil and gas and defense. Over the years, we have gained rich experience in dealing with diverse customers. Our people are committed and technically competent. We have indigenized the technology sourced from global OEMs. Wide range of our products and footprints in 82 countries are our strength. The world is changing now. So are we. There is a shift in energy sector towards renewables across the globe, and technology developments are disrupting the status quo. We believe that engineering and manufacturing excellence of BHEL built over 50 illustrious years alone is not sufficient today. We need to find new ways to fuel our growth aspirations. And today, when India is the fastest growing major economy in the world, we are seizing opportunities to move ourselves to the next level of growth. How? To make this possible, we are on the transformation journey of creating BHEL of tomorrow. By enhancing responsiveness to emerging opportunities, which are broad contours of this journey in our strategic plan, the road to 2022. 5 years, 9 elements. 9 elements of executing vision. Need to lay the foundation for tomorrow. We must ensure effective execution of customer orders and strategies by delivering excellent quality work and keeping the cost under control. We must reduce layers in our operations and structures. Let us simplify each other's work by simplifying complex processes and methods. We must not settle for anything less and sustain our leadership in core business. We must learn, share and develop for tomorrow. Holistic development of our people and alignment of training and development programs with changing business needs are at the top of the management's agenda. To work along with technology developments, we must harness digital opportunities for new and existing business and to raise productivity level of employees and operations. We are focusing on deepening our global presence through market expansion and market penetration with the objective to raise export orders by 6 times by 2022.
By using engineering and manufacturing as our core strength, we are exploring new opportunities in renewable energy, transportation, transmission, oil and gas, defense and aerospace. We are targeting to increase non-coal business in overall business mix from 30 to 50%. R&D and innovation are our most important competitive advantages. We must enhance our focus on outcome-based engineering and technology initiatives. ECS, ADD, GDI. These 9 elements of executing vision, NEEV, are the essence of our future strategy. Aligning our actions with NEEV can transform BHEL. We can double our turnover by 2022 while increasing the share of non-coal business to 50% along with increase in productivity and profitability. Yes, we can. We will. Creating BHEL of tomorrow. ओके गाइस, जो हमने अभी देखा है बेल के बारे में, तो हमने ये देखा कि बेल सिर्फ और सिर्फ एक यानी जनरेशन के लिए ही काम नहीं करती है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है बेल जो कंपनी है। सो उसके बारे में और अच्छे से जानकारी हमको आज के जो हमारे स्पीकर्स है वो देंगे। इंजीनियर अमोल भोयर जो रिसेंटली बेल में है, और वो वहां के जो भी किस तरह वर्क चल रहा है, किस तरह प्रेजेंट सिनेरियो है और कैसी वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बिकॉज ऑफ वो भी चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं। हमने एक साथ ही अपना पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया है। 2010 के पास आउट हम दोनों भी हैं, और उन्होंने अपना जो रास्ता चुना, जो अब कहां तक है, वो तो प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन भेल। So guys, I'm glad to invite Mr. Amol Goyal. Please take the meeting. So Amol Goyal, please start now. Hello, hi writing engineers and my friends. My name is Amol Goyal. Correct. I am and Mr. Swapnil sir, he is my colleague in Polytechnic. So today I will start with one little story, because of that this session is going through with the one occasion, the day of occasion. So that's why I want to share one story to all of you. So in 1886 एक नॉर्मल इंसान ट्रेन से जर्नी कर रहे थे। सो तब तो अंग्रेजों का जमाना था एट द टाइम। सो एक नॉर्मल पर्सन एक कोने में अकेला सफर कर रहा था। तो सारे अंग्रेजों ने उन्होंने देखा कि यार ये कौन है, एकदम सिंपल पगड़ी पहन के थे, नॉर्मल पोशाक था उनका। तो उन्हें लगा कि यार ये गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहा है। सो आफ्टर 15 मिनट्स सडनली ट्रेन वॉज स्टॉप्ड। उन्होंने जो वहां पे जो पर्सन खड़े थे उन्होंने वो चेन खींच दी ट्रेन की। जब ट्रेन रुक गई तो ट्रेन का एक गार्ड उनके पास आ गया। तो उन्होंने उनसे इंक्वायरी किया कि आपने ट्रेन पुल क्यों किया, आपने ट्रेन स्टॉप क्यों किया। सो उन्होंने आंसर दिया उनका कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज इशू इन रेलवे ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है, मुझे ऐसा आभास हुआ, इसके लिए मैंने वो ट्रेन पुल किए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो डिफेक्ट इन रेल कहाँ पे है। सो गार्ड को लगा कि यार ये क्या बात है, ऐसा कोई बोल सकता है। तो वो बंदे ने उनके साथ सर वो चले गए। सर हाँ ये आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, ऐसी बहुत लोग बोल रहा है। एक्चुअली वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके, 1 minute. Can we start from hello, sorry sir. Yeah. Can we start from first? Hello. How? Can I continue or can I stop? Can I start again? No. Firstly we attached, आप अटैच करो आपका माइक अटैच करो आपका, यानी हेडफोन। 1 minute.
2 मिनट गाइस, 2 मिनट के बाद फिर से टॉक स्टार्ट हो जाएगा. सम टेक्निकल इश्यूज हियर. सब लोग आपका कैमरा ऑफ रखो गाइस, यानी वीडियो जो है, वीडियो कैमरा जो है ऑफ रखो. आप ऑडियो ऑन रख सकते हैं. चियो, आपका कैमरा स्टार्ट है. Hello, can you hear me now, Swapnil sir? या So first, again I will start my session. So first of all, hi everyone, my rising engineers and my friends. Actually, I want to tell one small story because Swapnil sir gave this session on the occasion of which day. So that important, you all people, you have to know. So that's why I will start one little story for everyone. So first of all, in 1886 की बात है, तब हमारे इंडिया में अंग्रेजों का राज किया करता था. तो एट दैट टाइम एक मैसूर का एक महाजन थे, एक पर्सन थे जो काइंड हार्टेड थे. वो ट्रेन से सफर कर रहे थे. तो ट्रेन बैठे हुए थे, वो भी उनके साथ सफर कर रहे थे. बट सडनली अचानक से ट्रेन बंद हो गई. वो सज्जन आदमी ने, उन्होंने ट्रेन पुल कर दी, ट्रेन की चेन जो है वो खींच दी. बट खींचने के बाद वो सारे जो अंग्रेज थे वो उन पे चिल्लाने लगे कि यार व्हाट इज दिस, आपने चेन क्यों खींच दी है, आपको क्या मालूम है, ऐसा वैसा करके वो डांटने लगे उन लोगों को. बट आफ्टर सम टाइम्स वन ट्रेन गार्ड विल कम देयर. वो आते हैं वहां पे, उनसे पूछते कि आपने ट्रेन की चेन पुल क्यों की. तो वो सज्जन जो थे वो उनको बताते हैं कि देयर इज सम इशू इन रेलवे ट्रैक. सो वो बोल रहे कि आपको कैसे पता है. तो उन्होंने बोला कि मुझे, मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आगे से 500 मीटर पे देयर इज वन बिग डिस्प्यूट. सो गार्ड ओके बोलता है, ठीक है चलिए चलिए फिर दिखाइए. अगर सही में वो डिफेक्ट है तो आफ्टर 500 मीटर के बाद जब वो दोनों चल के गए रेलवे ट्रैक पे, तो वहां देखा गया था कि रेलवे का जॉइंट सेपरेट हो चुका था. वहां की जो ओल्ड जॉइंट थी वो सेपरेट हो चुकी थी. और उन्होंने बोला कि अगर यही ट्रेन में पुल नहीं करता तो आगे जाके बहुत बड़ा हादसा होता था. तो वो सज्जन और कोई नहीं, सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्मदिन के तिथि पे हम इंजीनियरिंग डे मनाते हैं. सो इसी डे पे मैं आप सब लोगों को इंजीनियर्स डे की शुभकामना देना चाहता हूँ. एक्चुअली सॉरी फॉर yesterday, actually मेरा सेशन yesterday था, but due to my workload I can't give that session. So my name is Amul and currently I am working in BHEL, that is a Maharatna company of public sector, government of India undertaking. So first of all, थोड़ा सा इंजीनियरिंग के बारे में मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग में जैसे वेरियस फील्ड है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर, एरोस्पेस, लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड इज देयर. बट इस बारे में पता है क्योंकि हमारे रीजन में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ब्रांचेस रहती है उसके हिसाब में, या हमारे रिलेटिव या कोई भाई या बहन किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है उस फील्ड से, तो हम वो ब्रांच सेलेक्ट करते हैं. तो इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो नेशन डेवलप करता है. फर्स्ट तो जितने भी यहाँ पे इंजीनियर्स है या जो इंजीनियर्स बनने वाले, उन्होंने प्राउड फील करना चाहिए कि हम नेशन डेवलपमेंट में कुछ अपना हिस्सा दे रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तो कोर ब्रांचेस है. चाहे कितना भी साल हो इनके जॉब्स कभी जाएंगे नहीं, इनके काम कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये डेली नीड्स है. जैसे हम फूड, शेल्टर और क्लोथ हमारा डेली नीड्स है, उसी हिसाब से इंजीनियरिंग में ये तीनों ब्रांचेस इज वेरी प्रायोरिटी बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर. सो ऐसा कोई एक फील्ड नहीं है कि जैसे सिविल में ही सारा कुछ है, इलेक्ट्रिकल में ही सारा कुछ है, मैकेनिकल में ही सारा कुछ है, या आईटी में, कंप्यूटर में.
पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है वो सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस की वजह से टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। सो बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आई एम वर्किंग इन बीएचईएल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने इंजीनियरिंग कैसा किया, पॉलिटेक्निक कैसा किया, उसके बारे में एक जस्ट शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, किसी को पता होगा, बिसापुर करके, वहां मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ जिला परिषद स्कूल से, मैं फोर्थ तक वहीं पे पढ़ा, वहां पे पढ़ा। उसके बाद एक मेरे मामा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो उन्होंने उनको लगा कि थोड़ा सा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे अपने पास पढ़ने को लेके गए। तो मेरे 10th की जो एजुकेशन हुई वो चंद्रपुर में हुई। उसके बाद 10th में तब वो क्या था कि एक बड़ा सा प्रेशर रहता था 10th की स्टडी में, कि भाई ओपन मेरिट आना है, 80% मिलना है, सर एक्चुअली 90% मिलना है। वो बहुत आ रहा है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। अरे यार, 1 मिनट, आई हैव टू ओपन माई डोर, 1 मिनट। हाँ या हेलो, हाँ ओके सर, हाँ साउंड इज ओके नाउ। no हेलो, no always echo is there. 1 मिनट। कैन यू लिसन मी नाउ? Yes. हेलो, हाँ हाँ कैन यू लिसन मी नाउ? yeah हाँ 1 मिनट, it's better now. हाँ 1 मिनट। हेलो, Yeah. स्वप्निल सर। हाँ Sorry for disturbance. Actually, I'm a civil engineer, but there is fault in my room actually itself, because there is no L by B ratio is not justified here. So that's why that echo will produce. Okay. Then my 10th की पढ़ाई मेरी मातोश्री विद्यालय से हुई है, चंद्रपुर से। उसके बाद जब 10th का एक दौर था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं एक बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से था, तो दैट विल नॉट माय, मेरे पेरेंट्स उतना मुझे पढ़ाई के लिए उतना खर्चा नहीं उठाने के लिए उतना सक्षम नहीं थे। तो उसके बाद 10th का जब दौर था, तो उसके बाद ऐसे ही एक सडनली एक वेव्स आया था कि पॉलिटेक्निक नाम का कुछ ये चल रहा था, कि सबको पता था कि पॉली पॉली करके क्लास में बच्चे बोलते थे। तो मुझे भी लगा कि यार कुछ डिफरेंट है, अपने को तो पहले जॉब लेना है। तो मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी पॉलिटेक्निक करना है। पॉलिटेक्निक करना मुझे इतना पता था कि पॉली करने के बाद मुझे जॉब मिलता है, जो मुझे जरूरत था। तो मैंने ऐसे ही फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, फॉर्म फॉर्म भर दिए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, नंबर वगैरह लग गया था मेरा। बट मुझे मिला था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो उस टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मीन्स काफी मार्केट अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना था। तो नंबर वगैरह लग गया, बट ड्यू टू 2 डेज मुझे लेट हो गया था, मैंने एडमिशन लेट कराई। एडमिशन लेट कराने की वजह से मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिली नहीं। सो मुझे देन सिविल इंजीनियरिंग में लेना पड़ा। सो वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने बातचीत कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि आप आफ्टर फर्स्ट ईयर क्लियरेंस यू गॉट सेकंड ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो मुझे लगा कि ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर तो क्लियर कर लूंगा, उसके बाद मैंने चेंज कर लूंगा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर जब कर रहा था, तो मुझे ऐसे काफी लोग मिले। बेसिकली एक मेरे सर है जो एचओडी थे हमारे टाइम पे पॉलिटेक्निक में, शेख सर, जो कि अब प्रिंसिपल ऑफ सोमैया पॉलिटेक्निक है। तो वो मेरे गाइडेंस बने, उन्होंने मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में समझाया। सो मुझे भी वो जब पढ़ते टाइम पे इंटरेस्ट आ गया था। सो मैंने बाद में जब फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, तो मैंने इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट रहा है
पॉलिटेक्निक का, वो मैंने सिविल कंटिन्यू किया। उसके बाद स्वप्निल सर भी हमारे कलीग्स थे, क्लासमेट थे, तो हमारी 2010 में हमारी पॉलिटेक्निक जो है वो क्लियर हुई। बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे इंजीनियरिंग के लिए सोचने का थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम रहा था, क्योंकि मैं जब पॉलिटेक्निक के ईयर्स में था, फाइनल ईयर में था, तब मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में थे और ड्यू टू सम मैनेजमेंट रीजन वो कंपनी जो है वो बंद हो गई। सो 15 और 20 ईयर्स मेरे पिताजी की जो भी सर्विस थी, सो उन्हें फिर रिजाइन देके उन्होंने जो भी अपना पैसा मिला, तो मैंने ही पूछा कि मैं इंजीनियरिंग, मैंने उनको चाह बताई मेरी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डिप्लोमा तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और थोड़ा पढ़ लेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो फिर पिताजी से मैंने पूछा, तो माताजी पिताजी दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने यही बोला कि सिचुएशन जो भी हो आप इंजीनियरिंग कर लो। मुझे वो जो भरोसा उन्होंने दिलाया है वो आखिर मरते दम तक मुझे याद रहेगा। सो मेरे पिताजी की जो भी कमाई थी 15-20 साल की, वो सारी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में थे, ज्यादा सैलरी नहीं थी, सो उसके वजह से उनकी जो जो भी रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया था, तो उसके बाद जो फिर उनको जो पैसे मिले उनके वजह से मेरा इंजीनियरिंग हो पाया। और मुझे मेरे मामा ने भी काफी सपोर्ट किया। तो जब मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, राजीव गांधी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया। वहां मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2013 में। उसके बाद अब मुझे ये तय था कि अब मुझे जॉब करना है, मैं आगे की पढ़ाई के लिए तो कैपेबल नहीं हूँ या मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता हूँ। सो मुझे ये सोच में पड़ गया, जब मैं फाइनल ईयर में था तभी से मैंने पूरा सर्च चालू कर दिया कि मुझे कहाँ जॉब मिल सकता है। क्योंकि सिचुएशन ये है कि आप अगर किसी की जगह बैठ जाते एक तरह से, या मेरा इंजीनियरिंग हो गया तो मुझे जॉब मिल जाएगा, सो ये थिंकिंग जो है वो कभी काम में नहीं आएगी। क्योंकि डे बाय डे सब कुछ ग्रो हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ गए हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए हैं। उसके वजह से जो इंजीनियरिंग का जो पहले जो बोलते थे कि इंजीनियरिंग होने के बाद इसको जॉब तो मिल ही जाएगा, बट वैसा अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक साल में हजारों लाखों लोग इंडिया से इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं। सो अगर मुझे उनके कंपटीशन में कहीं तो भी उतरना है, जॉब लेना है, तो मुझे सेल्फ एक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा कि मैं कैसे भी करके मुझे फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी। लाइफ का, एजुकेशन के बाद जिंदगी का पहला एक ऐसा सफर होता है जो फर्स्ट जॉब मिलती है, चाहे सैलरी कितनी भी हो। मेरा जब इंजीनियरिंग का एग्जाम खत्म हो गया था, तो मैंने डे सेकंड से, जैसे आज मेरा अगर इंजीनियरिंग खत्म हुआ, तो मैंने डे सेकंड से विदाउट रिजल्ट वेटिंग मैंने अपना करियर के लिए स्टार्ट किया था कि मुझे कहाँ जॉब मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिज्यूम बना लिया। उसके बाद में मुझे जहां जहां मेरे कंसल्ट का जो काम रख रहा था, जिस जिस कंपनी में मैं जा सकता हूँ, कुछ रिज्यूम दे सकता हूँ, वैसा मैंने काम किया। बट 10 डेज में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहा जहां जहां काम चल रहा है। सो सडनली मुझे पता चला कि चंद्रपुर में, तब अभी जो वरोरा नाका है वहां पे ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है, जो उस टाइम पीडब्ल्यूडी का वर्क था, और वो वर्क अवार्डल था अपना अजय मंगल पाल एंड कंपनी, जो बॉम्बे बेस्ड का एक कंपनी थी, वो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रही थी। रेलवे ओवर ब्रिज था एक चंद्रपुर में और एक राजूरा में, बट दोनों काम का अवार्डल जो हुआ था वो अजय मंगल पाल एंड कंपनी ठाणे को हुआ था। सो तो मुझे पता चला, तो उसके बाद मैंने दोनों साइट विजिट चालू कर दी। मुझे तो पता था कि फ्रेशर्स को तो जॉब लगना थोड़ा सा कठिन समय रहता है, सो मुझे खुद से इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ा। मैंने वहां गया, वहां प्रोजेक्ट मैनेजर से मिला, वहां का साइट देखा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास मेरा सॉरी सीवी दिया, रिज्यूम दिया, उनको बोला कि सर मुझे बहुत अर्जेंट है जॉब की, मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है, आई परस्यू माई इंजीनियरिंग बट रिजल्ट इज अवेटेड, प्लीज गिव सर जॉब टू मी। सो मैंने उनको अपनी आत्मीयता बताई कि मुझे सही में इंटरेस्ट है और मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। तो ऐसा करके उनका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, मैंने भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया। उसके बाद मैं डेली, मुझे मालूम था कि मुझे जॉब तो मिलना नहीं है, बट काम यहाँ चल रहा है तो मुझे कुछ देखने को मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इसके लिए मैं वहां जाता रहता था, विजिट करता रहता था।
तो जब कंटिन्यूसली मैं 10 डेज गया, 15 डेज गया, तो मुझे पता चला कि यार यही कंपनी मुझे जॉब देने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास वैकेंसी नहीं होगा। सडनली 17 तारीख को मुझे वो केचे सर करके एक वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनका मुझे कॉल आया एंड दे कॉल्ड मी फॉर जॉब एंड दैट टाइम वो मेरा पहला जॉब था। सैलरी मुझे निग्लिजिबल मिली, 8,000 रुपये मेरी फर्स्ट सैलरी थी, और बाकी का कंपनी रहने का, खाने का और मेरा ट्रैवल अलाउंस दे रही थी। और चंद्रपुर में प्रोजेक्ट था, तो मुझे लगा कि मुझे पहले सीखना है। पैसे की तो जरूरत हर किसी को होती है, बट मुझे काम सीखना है। सो मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, तो वहां पे कुछ भी बना हुआ नहीं था, ओनली एक्सकर्शन चल रहा था। तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तो इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, डिप्लोमा पढ़ा हूँ, बट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। हमने प्रैक्टिकल पर्पस जब इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक में जो भी प्रैक्टिकल किए, तो वो उस सीरियसनेस से नहीं किए थे, क्योंकि हमको आगे का पता नहीं था ना कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जब एक बार ऐसे एक्सकर्शन था, बड़ा फुटिंग था। आप तो ब्रिज फाउंडेशन, आप अभी वहां से चल के जा सकते हैं। वो रोड ब्रिज एक्चुअली चालू हो गया है दोनों का, राजूरा एंड चंद्रपुर का। सो वहां के जो पाइल फाउंडेशन था, 30 मीटर डीप था, उसका डायमीटर ऑफ पाइल था 1 मीटर। सो बहुत ही क्रिटिकल काम था, बड़ा काम था। और उस टाइम पे मुझे एक्सकर्शन फिट हो गया था, मुझे वहां पीसीसी करना था और मुझे वहां लेवल देना था बाय ऑटो लेवल। एक इक्विपमेंट होता है एक्चुअली, यहाँ सारे बच्चे सभी फील्ड से है, तो एक सर्विंग में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कोई भी रोड का देखोगे तो हम अक्सर किसी को पता है तो बोलते कि दूरबीन से क्या देखते हैं, बट वो एक लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे ऑटो लेवल कहते हैं, और उससे हम किसी भी चीज का लेवल ले सकते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मीन्स मैं कंफर्म नहीं था। सो धीरे धीरे मुझे वो सीखना पड़ा। सो सारा फिर लेवल धीरे धीरे मैं सीख गया। सो वहां पे मैं काम स्टार्ट किया। तो मेरे जो सीखने की चाह थी, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को थी, वो थोड़ा सा लगा कि ये बच्चा कर सकता है, इसको पता नहीं है बट ही इज इंटरेस्टिंग टू डू दैट वर्क। सो उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि ठीक है, कोई गलत है तो मेरे पास आओ, मुझे पूछो, कोई गलत हो गया तो डरना नहीं है, मेरे पास आओ, मैं आपको बता दूंगा। तो समटाइम्स बहुत सारे प्रॉब्लम आए कि सर मुझे तो पता नहीं था, कभी लेवल में गड़बड़ हो गया था, तो मैं उनके पास जाता तो उन्हें वो खुद मेरे साथ आते थे। इवन दो ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही कम्स टू मी एंड ही टॉट मी दैट हाउ टू टेक द लेवल एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट लेवल। सो इस लेवल तक उन्होंने मुझे वहां पे हेल्प की। तो धीरे धीरे फिर बाहर बेंडिंग शेड्यूल हो गया। बड़े बड़े चीज जो है, किसी भी आप इंजीनियरिंग में, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, आईटी हो, किसी भी चीज में अगर आपको जॉब या नॉलेज लेना है, तो आपकी फर्स्ट थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। आप अगर थिंकिंग चेंज करेंगे, तो आपका करेज बढ़ेगा, आपको नॉलेज आएगा। सो वो नॉलेज के बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू गो ऑन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड साइड। आपको धीरे धीरे वो नॉलेज आते जाएगा एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल गो ऑन फॉरवर्ड साइड। सो वहां मैंने कम से कम 8-9 महीना काम किया। वहां पे लगभग 50% वहां का काम हो गया था। तो उसके बाद सडनली मुझे एक दिन मॉर्निंग में 12 o'clock एक मेल आया कि सीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी में कुछ वैकेंसी है, तो मुझे इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आ गया। बट सेम डे एट इवनिंग मुझे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मेल आया था कि आपको भी इंटरव्यू आना है। सो एट द सेम डे एंड सेम डे एक सीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेरा इंटरव्यू था हैदराबाद में, बिरला टेम्पल में। बिरला टेम्पल की बाजू में बिरला ग्रुप का एक बड़ा आलीशान ऑफिस है। और रिलायंस ग्रुप का मुझे इंटरव्यू आया था, वो बॉम्बे था। बट मुझे लगा कि यार मुझे मुंबई तो पता नहीं, मैं कभी गया नहीं था, क्योंकि कभी काम आया नहीं। सो हैदराबाद तो नियरेस्ट है, तो मैंने सोचा चलो सीके बिरला ग्रुप वहां का इंटरव्यू ज्वाइन करते। नया था, जर्नी कभी मैंने की नहीं थी ट्रेन से, मुझे पता नहीं था। सो जर्नी के लिए मेरा 9 बजे का ट्रेन था, सवेरे 6 बजे पहुंचने वाली थी और 9 बजे मेरा इंटरव्यू था। सो मैं निकल गया। निजामुद्दीन एक्सप्रेस से मेरा बल्लाशाह से हैदराबाद के लिए ट्रेन था।
बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, सेम डेट सेम टाइम पे दो ट्रेन चलती, एक निजामुद्दीन एक्सप्रेस बल्लारशाह से निजामुद्दीन जाती है और एक बल्लारशाह से हैदराबाद जाती है। तो उस टाइम जबकि नया था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो अकेला निकल पड़ा था मैं बैग लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके कि इंटरव्यू देना है। तो गलती से थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में दोनों गाड़ियां प्लेटफॉर्म पे सेम आजू बाजू में खड़ी थी। प्लेटफॉर्म फर्स्ट में थी निजामुद्दीन गाड़ी जो जाने वाली थी निजामुद्दीन, और सेकंड पे खड़ी थी हैदराबाद जाने वाली। मैं गलती से निजामुद्दीन एक्सप्रेस निजामुद्दीन जाने वाली में बैठ गया। अब रात का सफर था तो मुझे पता नहीं चला कि भाई गाड़ी कहाँ से जा रही है। बट जैसे ही चंद्रपुर क्रॉस हो गया, चंद्रपुर के पहले मुझे आभास हो गया था कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया था। सो मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया कि यार ऐसा ऐसा है, मैं गलत ट्रेन पे चढ़ गया हूँ, मेरा ट्रेन नंबर ये है, पीएनआर नंबर ये है, सो मुझे गाइड करो कि वो ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे है या उसकी स्थिति क्या है। तो सडनली मेरा लक समझो कि वो ट्रेन 5 आवर्स लेट थी। जो 9 बजे की ट्रेन आने वाली थी वो रात के 2:30 बजे आने वाली थी। सो प्रॉब्लम ये हुआ कि दोस्तों से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे भद्रावती स्टेशन सॉरी बड़ौदा स्टेशन पे मैं उतर गया, और रात के 11 बजे वो ट्रेन बड़ौदा आई और वहां से बैठ के मैं फिर हैदराबाद गया, इंटरव्यू दिया। सारे वहां पे एक्चुअली साउथ इंडियन लोग थे, उनकी इंग्लिश, उनका हिंदी लैंग्वेज पे थोड़ा सा प्रॉपर कमांड होता है। तो हम तो जस्ट निकले हुए थे, हमको हिंदी तो पता नहीं था उतना, इंग्लिश भी पता नहीं था। सो बट एक कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि मैंने कुछ काम किया है प्रीवियसली, सो उस बेसिस पे मैं कुछ इसमें कर पाऊँ। सो कॉन्फिडेंटली गया, इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू दिया, 5 लोग थे, टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद पहले तो एग्जाम हुई, टेक्निकल राउंड हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। सेम डेट मुझे ऑफर लेटर मिला और औरंगाबाद में मेरा पोस्टिंग। सो ये मेरा सेकंड जॉब था। बट इसमें भी मैं काफी कुछ सीखा कि आपका अगर टाइम मैनेजमेंट, आपका प्लानिंग और आपका एम नहीं होगा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती थी, और सडनली बाय लक मुझे मिली, बट मेरी ट्रेन मिस हो जाती थी, मेरा इंटरव्यू चला जाता था, मुझे नेक्स्ट जॉब नहीं मिलता। सो इसमें मैं सीख लिया कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना है फर्स्ट, सेकंड आपका प्लानिंग होना है प्रॉपरली, थर्ड होना है आपका एम होना चाहिए। तो इस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो आप अल्टीमेटली फॉरवर्ड साइड आएंगे। ठीक है, समटाइम्स आपको फेल्यूर आएगा लाइफ में, बट if that failure will cross, then success is success in front of you, that forward side. So कंटिन्यू मैं औरंगाबाद गया, वहां पे मेरा पोस्टिंग हुआ था, ज्वाइन किया। वहां पे मैं नया था, बड़े बड़े अधिकारी दिखे, मुझे डर लग रहा था कि यार कहीं मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे उतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं, जस्ट पास आउट आ गया, 8 महीने काम किया वो प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस है। बट उसके बाद मुझे समझा कि नहीं चलो, मैं कॉन्फिडेंटली तो इंटरव्यू दिया था, सो मुझे वर्क अलॉट हुआ, मेरी क्वालिटी कंट्रोल में मुझे जॉब दिया गया, मैंने वहां काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखते गया, मुझे पता चला कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चंद्रपुर छोड़ दिया था बट कुछ नॉलेज लेके छोड़ा था। उसके बाद मैं हैदराबाद फिर औरंगाबाद आया। औरंगाबाद में मैंने 3 महीने काम किए। सडनली तब मुझे एक अंदर से फीलिंग थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, कैसे भी करके मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है। सो मुझे पता था कि गवर्नमेंट जॉब सिविल के पास पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी और जिला परिषद, इनमें सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो वैकेंसी निकलता है। बट मुझे ये पता नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे पीएसयू लाइक बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, सो नवरत्ना कंपनीज, महारत्ना कंपनीज, मिनी रत्ना कंपनीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर होते हैं। सडनली मैं एक बार ऐसे ही दो लंच के टाइम पे मैं बाहर निकला, तो एक बंदा प्रिपरेशन कर रहा, जो एक मैनेजमेंट का बंदा था, वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके पास मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज दिखा। सो सडनली एक कर्टेसी बेसिस पे मैंने पूछ लिया कि भैया ये जो पेपर है वो किस चीज का है, उसमें क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, इसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स इसमें आते हैं। वीकली बेसिस पे ये पेपर आता है, इसमें आप खोज सकते हैं कि इसमें जॉब
कितने हैं, कौन से कंपनी के, हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दैट न्यूज़पेपर। सो मैंने जस्ट ठीक है समझ लिया, छोड़ दिया। बट जब मुझे नई जॉब लगी थी तो मैंने सर को कॉल किया, हमारे जो एचओडी थे शेख सर, उनको मैंने बता दिया कि मुझे ऐसा जॉब लग गया है। सो मुझे उन्होंने भी हिंट दिया था कि यू मस्ट प्रिपेयर एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज पेपर होती है जिसमें जॉब आते हैं। सो मैं फिर वीकली बेसिस पे 12 रुपीज का वो एक था वो लेते गए। तो उसमें मैंने देखा कि सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, एवरीथिंग। हमें ये पता है कि आईटी और कंप्यूटर की जॉब्स खाली टाटा, टीसीएस, इंफोसिस या कुछ बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में होती है। बट ये गलत बात है। ऐसे कई गवर्नमेंट सेक्टर है जिनमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ये रिक्त इसकी इनकी वैकेंसी होती है। तो मैंने फिर धीरे धीरे एक बार सडनली मैंने देखा, एक बार न्यूज ऐसे पेपर देख रहा था तो मुझे बीएचएल की वैकेंसी दिखी। सो मैंने सोचा यार बीएचएल क्या होता है, मुझे तो पता नहीं था। सो मैंने देखा, फिर बीएचएल देखा तो उसमें मुझे पता चला कि उसमें वैकेंसी है। सो चलो कर्टेसी बेसिस पे मतलब भर देते यार, क्या दिक्कत है, लगना है जॉब या नहीं लगना है। लेकिन एक प्रोसेस तो पता है। बट उसके पहले मैंने काफी सारे एग्जाम, काफी सारे फॉर्म भर चुके थे, एमएससीबी, महाजन को, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सारे मैंने एग्जाम के बारे में सुना था, एक आध दो मैंने एग्जाम दे भी दी। बट मुझे लगा कि चलो ये भी भर देते। सो मुझे एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका था। सो उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो सडनली मुझे एक ऐसे ही मोबाइल में देखते देखते मेरे पास एक मेल आ गया कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ फॉर रिटन एग्जाम के लिए। सो रिटन एग्जाम फिर हुई, रिटन एग्जाम दी मैंने। सो उसके बाद 15-20 डेज के बाद मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया है फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सो पर्सनल इंटरव्यू में भी 1:10 का रेशो था, यानी एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे। सो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ऐसे तो आ तो गया है तो दे देते। तो मैंने इंटरव्यू को गया बैंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बैंगलोर की वैकेंसी थी, वहां मुझे जाना था। सो मैंने औरंगाबाद से डायरेक्ट बैंगलोर गया। हमारे जो एजेंट थे उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा एक इंटरव्यू है, सो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी, मैं गया। उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक भी इसलिए बोला क्योंकि उनके जो पिताजी थे, हमारे एजीएम थे दिनेश घोड़े करके, वो मराठी आदमी थे। बट उनके पिताजी जो थे वो एक्स बीएचएल एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से कहा कि तुम जाओ, आई विल मैनेज यूर लीव, यू डोंट वरी, यू गो ऑन फॉरवर्ड साइड। सो मुझे वहां कॉन्फिडेंस मिला कि चलो मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ बट मेरे बॉस के बॉस है वो संभाल लेंगे। तो मैं चला गया, इंटरव्यू देने चला गया। बट ट्रेन में क्या क्या पूछेंगे वो लोग, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं उतनी बड़ी, तो क्या क्या पूछेंगे। बट प्रीवियस एक्सपीरियंस था मेरा कि मैंने जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में किया था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम एक्सकेवेशन, ईसीसी, फुटिंग टू गर्डर प्लेसिंग टू आरसीसी कंक्रीट। सो मैं बोला चलो उतना तो पता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही स्टैंड में मैंने पढ़ लिया, कुछ भी जो बेसिक थिंग्स होती है सो मैंने पढ़ लिया और चला गया। इंटरव्यू दिया, बट थोड़ी सी बहुत नर्वस फीलिंग हो रही थी क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग आए हुए थे वही इसमें। मैं तो एक छोटा सा था, मेरी ज़्यादा पर्सनैलिटी भी उतनी थी नहीं, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ चला गया। सो जाने के बाद उन्होंने जो भी प्राइमरी होता है, जो वेरिफिकेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, सारा चीज किया। बट मुझे तब मालूम नहीं था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कास्ट, मेरी जो मैं ओबीसी में आता हूँ, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आती है तो वो सेंट्रल नॉर्म्स की चाहिए होती है। तो उन्होंने बोला कि चलो अंडरटेकिंग ले लेते बट आपको इंटरव्यू हो जाएगा। सो मुझे लग गया कि यार ये तो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे नौकरी नहीं लगेगी। बट उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटरव्यू किया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने बीएचईएल 2014 मार्च 22 में ज्वाइन किया। आफ्टर बैंगलोर में मेरी ज्वाइनिंग थी, मैंने बीएचईएल में ज्वाइन किया। ऑफिस में कम से कम 15 डेज था। उसके बीएचईएल ईडीजे डिवीजन है, सारे इंजीनियरिंग थी, उसमें सारे इंजीनियर थे।
सो वहां पे जाने के बाद एक BHEL सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर कंडक्टर, एक्चुअली सेमी कंडक्टर फोटोवोल्टिक, जो सोलर के रिलेटेड होते वहां एक डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का में मुझे जॉब लगी थी, वहां सिलेक्शन हुआ था। बट उनका एक बिजनेस था कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर आप बोलते हैं, सो वो और बाकी जितने भी थर्मल या इसरो के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स थे, मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग था, फैक्ट्री सर्विसेज थी वहां पे, तो वहां सारा बनता था। तो एक ऐसे ही मैंने सारा देख लिया। बट हम जो भी सिलेक्शन हुआ था जिन लोगों को, तो उन्हें प्रोजेक्ट साइट्स में पोस्टिंग कर दिया गया था। सो इंटरव्यू के टाइम पे मुझे बोला गया था कि देखो हमारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर और श्रीलंका बॉर्डर पे चल रहे हैं। सो आपको यू मस्ट बी रेडी फॉर एवरी लोकेशन। आपको ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहा हूँ या बांग्लादेश पे बॉर्डर पे जा रहा हूँ तो मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे डरना नहीं है। तो मैंने तो सोच लिया था कि मुझे जॉब चाहिए। सो मैंने वहां पे जाने के बाद मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो मुझे फर्स्ट साइट भेजा गया था जो बांग्लादेश एकदम बाउंड्री पे था। एक अगरतला इंडिया में स्टेट है, अगरतला स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न में आता है। सो वहां की कैपिटल है अगरतला और स्टेट का नाम है त्रिपुरा। सो वहां के बांग्लादेश बॉर्डर पे एक नॉर्थ नेपको करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, नॉर्थ इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो उनका एक प्रोजेक्ट जो BHEL को मिला था 5.6 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें BHEL को वो प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करके जनरेट करके देना था। ऑलरेडी वहां पे गैस बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहा था, जबकि वो वहां पे नेचुरल गैस बहुत सारा अवेलेबल है। तो बगल में हमारा BHEL का, लेकिन ईस्टर्न रीजन BHEL के सारे रीजन वाइज ऑफिसेस, रीजन वाइज बिजनेस है, 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ईस्टर्न रीजन कलकत्ता के वहां पे BHEL का स्टाफ डेप्यूट था और हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था वहां पे 5.6 मेगावाट का सोलर पावर का। सो मुझे भी सोलर एक नया था, बट वहां पे भी फाइल फाउंडेशन था, रिलेटेड वर्क्स था। सो मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, तो धीरे धीरे हमने वो सीख लिया और एक गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बारे में जाना, खुद उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ। मीटिंग एक गवर्नमेंट क्लाइंट बोले तो उसको टारगेट देना पड़ता है, टारगेट के हिसाब से काम अचीव होना है विद क्वालिटी। सो सारी चीज, बट एक मन में डर था कि बॉर्डर पे है, प्लांट की बाउंड्री खत्म होते ही ओपन बाउंड्री बांग्लादेश की चालू होती थी, वहां स्मगलिंग ज्यादा चलता था। BSF जवान बंदूक लेके चारों तरफ घूमते रहते थे, तो एक डर सा लगा रहता था कि कई यार सब स्मगलिंग के चक्कर में वहां फायरिंग भी होती थी। बट धीरे धीरे वो एटमोस्फियर में रह चुके थे, रहे। वहां का जो खाना पीना था, वहां पे रोटी नहीं मिलती है, चावल मिलता है। सो धीरे धीरे हमने सब एक्सेप्ट किया कि मुझे खाना तो नहीं मिलता था, बट फिर मैंने सेल्फ कुकिंग, सारा चीज है वो वक्त के हिसाब से मैंने अपने आप को ढल दिया। सो लाइफ में ये है कि खाना पीना जो है हमको घर जैसा ही मिलेगा, अगर आपको किसी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप एक लेवल में जी रहे हैं कि मुझे घर का खाना मिलेगा, मुझे ऐसा सिस्टम मिलेगा, ये हिसाब से मैं चलूंगा। बट सारे काम किसी घर वालों ने बोले ठीक है मैं 5 मिनट में कर दूंगा, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। बट ये 5 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दिन है, क्योंकि जो 5 मिनट में आप बोले वो 5 मिनट ना बोलते हो, अगर आपने सबको 5 मिनट में कर लिया तो यू आर अ बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्ड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट ही हमको पीछे पीछे लेके जा रहा है। सो सारा चीज मैंने वक्त के साथ मैंने सीख लिया। वहां पे बंगाली चलती थी मुझे शुरुआत में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स थे BHEL के 5, सो उनके साथ कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होता था, तो मुझे धीरे धीरे रह के बंगाली सीखनी पड़ी। सो मैंने बंगाली सीखी, तो उस आराम से फिर वो प्रोजेक्ट चला, क्योंकि मुझे बंगाली आती थी, लोकल लैंग्वेज थी। तो उसके बाद फिर मेरी BHEL की लाइफ चली 4 साल तक, 2018 में। सो वेरियस फिर प्रोजेक्ट मेरा ट्रांसफर होते गया। उड़ीसा में हुआ 20 मेगावाट, NTPC के मैंने 2 प्रोजेक्ट किए, 50 मेगावाट एंड 10 मेगावाट, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। देन तमिलनाडु में मैंने प्रोजेक्ट किया, वेस्ट बंगाल में मैंने 3 प्रोजेक्ट किए। सो धीरे धीरे मुझे एक कंफर्ट जोन मिलते गया। बट कंफर्ट इसलिए मुझे था कि मैंने अपने आप के जो मेरे जो ये थे
कि मुझे खाना ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ऐसा नहीं, मैंने वो मैचअप करते गया, एनवायरमेंट एंड एटमोस्फियर को मैंने वो मैनेज करते गया। सो सडनली एक बार मैं ऐसे ही 2018 में, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ था पावर सेक्टर में, पावर सेक्टर साउदर्न पावर सेक्टर में चेन्नई विभाग में मेरा ट्रांसफर हुआ था। उनका बिजनेस था कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट करते थे, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट करते थे, तो मुझे तेलंगाना का सबसे बड़ा 8x5 500/8 यूनिट का नियर अबाउट 4000 मेगावाट का, वहां पे बीएचईएल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। सो बहुत बड़ी 5000 एकड़ लैंड थी वहां पे, तो बहुत सारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था वहां पे। सो सारा चीज बाय डिफॉल्ट सब हम चलते रहे, काम चलते रहा, सारा चीज होती। सडनली एक दोपहर के टाइम पे मैं ऐसे टहल रहा था, सडनली मुझे एक कॉल आया वाया naukri.com कि यूर रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड एंड वी हैव वैकेंसी फॉर अब्रॉड लोकेशन। तो मेरे मन में एक सोच थी कि यार इंडिया लेवल पे तो मैंने जॉब कर लिया है, सो मुझे कहीं आगे बढ़ना है, एक फॉरेन कंट्री में, एक जो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे फॉरेन में जॉब करना है। सो उन्होंने बोला कि दुबई की कंपनी है, सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में एक आइवरी कोस्ट करके एक देश है, जो कि जिस देश में लोहा, सोना, मैग्नीशियम, जितने भी बड़े बड़े मिनरल्स थे वहां उसकी माइनिंग चलती है, वहां पे खदान है। सो मुझे पहले फेक लगा, क्योंकि एक लगता था कि naukri.com से तो सबको बोलता है कि यार ये नौकरी में आते जो भी है वो फेक रहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जेन्युइन भी रहते हैं। सो मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, शॉर्टलिस्टेड हुआ। बट एक थिंक कि यार एक सेटल जॉब छोड़ के क्यों मैं जाना है ना उसमें। बट वहां एक लालच थी मुझे कि मुझे इतना इतना पैकेज मिलेगा, खुद के लिए एक बड़ा सा कमरा मिलेगा, होटल मिलेगा, मेरा खुद का एक कुक रहेगा, खुद का एक ड्राइवर रहेगा, मुझे एक गाड़ी मिलेगा। मुझे वहां एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करके असाइन किया गया। बट बहुत लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि ये फ्रॉड हो सकता है यार, ऐसा है वैसा है। बट मैंने सोचा, देन एक जेन्युइन उनके प्रोजेक्ट मैनेजर का, एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मुझे फोन आया। मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, बट मेरे मन में कुछ डरावना था कि यार मैं सेटल जॉब छोड़ के मैं क्यों जा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, एक अच्छा जॉब छोड़ के मैं क्यों जा रहा हूँ। देन वहां के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मुझे फोन आया, जो कि वो मराठी थे। सो एक क्यूरियोसिटी कि अरे अपने वाला बंदा मराठी है, तो मुझे अच्छा है कि यार वो सही बोल रहा होगा, तो एक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अपना वाला ने सोचा कि जेन्युइन कंपनी है। वी हैव 4 कंपनीज जिनकी सारी की बिजनेस अलग अलग है, और नियर अबाउट 20 कंट्रीज में उनका बिजनेस चल रहा है। दुबई में, अफ्रीका में उनका एक ऑफिस है, एक मुंबई, एक दुबई एंड एक अफ्रीका में। सो उनका प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे सारा चीज बता दिया। बल्कि अगला वाला बंदा जो था, सामने वाला, वो मराठी था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, कि जेन्युइन है। सो मैंने मेरा पासपोर्ट सारा भेज दिया, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए वीजा के लिए। मैं बोला जो भी होगा अब देखा जाएगा, आगे जाके कभी ना कभी तो जॉब अपने को मिलना ही है, चलो ये छोड़ देंगे तो और से ट्राई करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आ गया था, कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया था कि मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ। सो मुझे ऑफर लेटर आ गया, घर वालों से मैंने परमिशन मांगी, घर वालों ने तो मेरे पे कॉन्फिडेंस था, उनका विश्वास था कि ये जो भी करेगा अच्छा करेगा। सो उन्होंने बोला कि आपको जो डिसीजन लगता है, आपकी जो मर्जी करे वो कीजिए। सो माता पिताजी ने तो मुझे ऑलरेडी क्लियरेंस दे दिया था। सो मैंने सोच लिया था कि मुझे जाना है, इसी में जॉब करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे एक सीखना है। तो मैंने ज्वाइन किया मुंबई ऑफिस से, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट की टिकट, सारा कुछ मिल गया। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई से आइवरी कोस्ट, जो कि मैं एक कॉन्टिनेंट छोड़ रहा था, इंडिया जो एशिया कॉन्टिनेंट से मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जा रहा था। और मेरी जो जर्नी थी वो 18 आवर्स की जर्नी थी, मुझे 2 फ्लाइट्स चेंज करने जाना था। मेरा फ्लाइट जो गया था मुंबई से केनिया, और केनिया से आइवरी कोस्ट। सो बहुत डर था मन में कि यार फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मैं फ्लाइट में पहले बैठ चुका था बीएचएल की, जब त्रिपुरा में था मैं, तो वहां पे ट्रेन जो थी वो मॉडिफिकेशन चल रहा था। जो ब्रॉड गेज थी, मीटर गेज था, उसको ब्रॉड गेज किया था, तो आने जाने का साधन था, तो मैं फ्लाइट से ही हम आना जाना करते थे। सो मुझे वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिल गया था कि प्लेन में तो मैं सफर कर चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो
मुंबई से मेरी जर्नी कमेंस हुई केनिया, केनिया से निकली अफ्रीका में। सो वो जो दिन गया मेरा, मुझे एक अलग सा फीलिंग हो गया था, क्योंकि 5 और 5 ओवर 30 मिनट्स का डिफरेंस टाइम लिमिट था। मैं 4 बजे मुंबई से निकला तो वहां बजे मैं 7 बजे पहुंचा, बट मेरी जर्नी थी 7 घंटे की, 8 घंटे की, बट वहां भी 7 ही बज रहे थे। मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। देन मैंने डिफरेंस निकाला तो 5:30 का जर्नी, जो टाइम डिफरेंस था, यहाँ पे अगर वहां पे 6 बजते थे सुबह के शाम के, तो यहाँ पे इंडिया में 12 बजते थे। तो मैंने ज्वाइन किया वहां पे जाके, ऑफिस में ज्वाइन किया अफ्रीका के। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट ऑफिस में भेजा गया, प्रोजेक्ट ऑफिस में भेजा गया। एक वहाँ कंपनी का बाजला रिसोर्सेस कंपनी थी, उनका वहां पे काफी बड़ा बिजनेस था माइनिंग का। हमारी कंपनी जो थी वो माइनिंग की थी। वो सोना, मैग्नीशियम और डायमंड, ये सारे चीज माइनिंग करती थी। सो वहां पे एक ऑलरेडी बहुत बड़ा उनका प्लांट था। जो भी ओर्स निकलते थे उसका प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा, जैसे आप वाटर सप्लाई का प्लांट देखते हैं, उससे भी दुगना एक प्लांट बनता था वहां पे। प्लांट था एक्चुअली वहां पे, बट इनके लिए एक अपना प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी थी, तो एक अलग से इनकी डिजाइन थी, एक अलग से उनका प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन देना था। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि अफ्रीका है। मैं बोला इंग्लिश चल जाती है, अपने को तो टूटी फूटी आती है, कुछ हो जाता हो। बट वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और बोलने की लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, जो कि मैंने कभी सुनी नहीं थी। सो बात कैसे करने का फिर, इंडियंस थे बट वो अपने अपने सेक्टर के थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर था वहां पे, मैकेनिकल सेक्टर था, इलेक्ट्रिकल सेक्टर था, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था। सो एक पूरा प्लांट था जिसमें सारे इंजीनियर वर्क कर रहे थे। प्रोसेस इंजीनियर था, केमिकल इंजीनियर था, बट मैं एज अ प्रोजेक्ट देखने के लिए गया था। तो मुझे कंपनी ने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि यू हैव टू प्रोक्योर ऑल द मटेरियल, वी हैव टू गिव डिजाइन ओनली, वी हैव टू सबमिट ड्राइंग्स ओनली, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल अवर एक्सटेंशन प्लांट। और उन्होंने मुझे टाइम लिमिट दी कि 3 महीने के अंदर आपको ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जबकि मुझे वहां का बेसिक नॉलेज कुछ नहीं था। मुझे इंग्लिश आती थी बट फ्रेंच आती नहीं थी। मुझे इंग्लिश आती थी बट अगले वाले को फ्रेंच आती थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि ये लोग सवेरे मॉर्निंग को बोंजू बोलते हैं, बोंजूर बोंसुआ बोलते थे। तो ये लोग बोलते थे, तो मुझे पता यार ये ऐसे क्यों बोलते थे, बट वो फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बोंजूर बोलते हैं और गुड इवनिंग को बोंसुआ बोलते हैं। तो धीरे धीरे मुझे एक एक वर्ड इनके सीखने पड़े, धीरे धीरे मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ी। वहां के जो मेरे को वर्कर्स थे या को कलीग्स थे वो फ्रेंच थे, सुपरवाइजर फ्रेंच, बार बाइंडर फ्रेंच, कारपेंटर फ्रेंच, वर्कर फ्रेंच, मिक्सर ऑपरेटर फ्रेंच। सो धीरे धीरे मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ा, फ्रेंच मुझे सीखनी पड़ी। और इतना करने के बाद मैनेजमेंट का प्रेशर था, वो विद इन अ टाइम लिमिट मैंने एक्सटेंशन और बना बनाया हुआ प्लान था, मुझे एडवांस इंजीनियरिंग यूज करनी पड़ी वहां पे, रिबारिंग करनी पड़ी वहां पे। सो धीरे धीरे फिर एनवायरनमेंट से मैंने मैच किया, सारा धीरे धीरे सीख गया। सो कंपनी ने मुझे फिर प्लांट, इंटरनल प्लांट में गैरेज हो गया, धीरे धीरे स्टोर हो गया। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप ही को डिजाइन करना है और आप ही को कंस्ट्रक्शन करना है। मैं तो डिजाइनर था नहीं, बट कंपनी ने मेरे ऊपर फेथ किया था कि ये बंदा कर सकता है। मैंने विद इन अ टाइम लिमिट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और कंपनी को मंथली एटलीस्ट 20 टन, बोले तो 50 to 1 करोड़ का मुनाफा हुआ वो प्लांट की वजह से। क्योंकि एक ग्रेड का मैग्नीशियम, मैग्नीज जो कंपनी बेचना चाहती थी अमेरिका को, वो प्रोडक्ट वो प्लांट की वजह से रुका हुआ था और मुझे रनिंग प्लांट में वो प्रोजेक्ट करना पड़ा। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डे नाइट मैंने वो काम करके उन्होंने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। देन दे विल, एंड मुझे उनके तरफ से पूरा गुड फेथ मिल गया। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मुझे पर्सनल दिया गया, सारी फैसिलिटी दी गई। मैंने अफ्रीका में उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट था, उस जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था वो 50 TPH का था, मुझे 100 TPH का हमें
अफ्रीका के जंगलों में माइनिंग में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, जबकि वहां का एक ऐसा हिलॉक था, हिलॉक के नीचे जाने के बाद हमको प्रोजेक्ट बनाना था। बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगलें थी, जंगले को क्लियरेंस करना पड़ा, टोपोग्राफी सर्वे करना पड़ा, सॉइल टेस्टिंग करना पड़ा, बहुत सी चीजें जो थी। जब जाते थे तो जंगली जानवर रहते थे, बट अफ्रीकन पर्सन जो थे वो किसी को डरते नहीं थे, और दे आर वेरी पोलाइटनेस। वो आपको एक बार अच्छे से बात कर लो आप उनसे, वो बहुत ही पोलाइटनेस, आपको एकदम इतना रिस्पेक्ट देंगे। एक्चुअली हम जैसे मराठी में साहब बोलते हैं कि इंग्लिश हिंदी में साहेब बोलते हैं, तो वहां के लोग मात्रा बोलते थे। तो मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनमें, धीरे धीरे काम अच्छे से चल रहा था। सो सडनली मेरा 2 साल का एक ये एग्रीमेंट हुआ था, तो 1 साल के बाद मुझे छुट्टी थी। तो 1 साल के बाद मैं इंडिया वापस आ गया। उसके बाद मेरे गोल्स बदल गए कि मुझे जाना तो था, बट मैं सोचा कि यहाँ से फॉरवर्ड साइड जाऊँ, मैं कुछ अदर कंट्रीज के लिए ट्राई करूँ। मुझे naukri.com पे बहुत कुछ आ रहे थे मेल्स कि मॉरिशस में है, वियतनाम में है, श्रीलंका में है। सो मैं धीरे धीरे अप्लाई करते रहा। जब मैं आया तो मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक असाइनमेंट अपलोड करके वीकली बेसिस पे पेपर आता है, वहां पे काफी अब्रॉड के लिए इंटरव्यूज कंसल्टेंसी कंडक्ट कराती है। तो मैंने सोचा कि अफ्रीका नहीं जाएंगे, अब कोई अलग कंट्री चेंज करेंगे। सो मैं वहां कम हो रही थी, तो जॉब्स धीरे 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 कम हो रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, सिलेक्ट हो गया, बट ऑफर लेटर मुझे मिल नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि अब, और यहाँ पे मैंने फिर इन्फॉर्म कर दिया था कि आई विल नॉट कम, आई विल रिजाइन दैट कंपनी, मुझे आगे जाना था। सो आगे मेरी जर्नी कमेंस हुई, लेकिन जॉब, हाथ का जॉब मैंने छोड़ दिया था। मुझे 3-4 मंथ्स जॉब नहीं मिल रहा था। देन मैं टेंशन में आ गया कि यार इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। सो एक मुझे ऐसे ही मोबाइल पे देखते देखते मुझे सोचा कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं। सो हैदराबाद में एक नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और केरला में एनडीई डेसिबल करके ऑल द इंडिया ओनली वन इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी एजुकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन कोर्सेज अलाउ कराती है। सो मैं बोला कि यार सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा लेते हैं। सो फिर ऑयल एंड गैस में मुझे जाना था, तो मैं बोला सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हैं, ऑयल एंड गैस में मुझे जॉब मिल जाएगा। तो मैं एनएससी गया हैदराबाद में। हैदराबाद में मेरी 15 डेज की ट्रेनिंग हुई, बट ये ट्रेनिंग मुझे naukri.com से मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ था, स्पॉन्सर ने मेरी ट्रेनिंग का खर्चा उठाया ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड माय नॉलेज। 15 डेज का हमारा ट्रेनिंग हुआ, एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, एंड आई एम द एनएसी नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई एम अ सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर, सर्टिफाइड सिविल इंजीनियरिंग एसेसर। उसके बाद मैंने सोचा कि और एक सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। उस दौरान मुझे कई कंपनी का इंटरव्यू आया, रामकी इंटरनेशनल हो गया, टाटा पावर हो गया, और मेरा सिलेक्शन, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। हाथ में जॉब थी, बट ऑफर लेटर आना बाकी था। सडनली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तेलंगाना की चेंज हो गई थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने टाटा प्रोजेक्ट की, वहां की जितने भी प्रोजेक्ट स्टॉप करा दिए। उस वजह से मुझे ऑफर लेटर तो मिला, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने वो एम्प्लॉय दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर लिए थे। सो उसके बाद में मैंने सोचा कि एक एनडी केरला, मैंने जस्ट इंक्वायरी डाली, नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया उनका कि आपने जो इंक्वायरी की है, हमारी जो एनडी डेसिबल जो इंस्टीट्यूट है वो सिविल एंड मैकेनिकल के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंटरनल ऑडिटिंग। सो एक कर्टसी की वजह से मैंने वो कॉल अटेंड किया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली। देन मैंने मन बना लिया कि मुझे ऑयल एंड गैस में जाना है, कि बेस्ट वे है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल का मिलेगा, आई एम क्वालिटी कंट्रोलर, सर्टिफाइड हो जाऊंगा तो मुझे इजीली जॉब मिल जाएगी। देन मैंने वो 3 महीने का केरला में पटम्बी करके एक जगह है, वहां पे मैंने ट्रेनिंग की, इंस्टीट्यूट में खुद प्रैक्टिकल किए, परफॉर्म किए, ऑनलाइन एग्जाम हुआ यूके से ऑनलाइन। उसके बाद मैंने वो सर्टिफिकेशन क्वालिफाई किया, एंड मुझे वो सर्टिफिकेट अभी ऑन द वे है, कोरोना की वजह से लेट हुए, बाय द नेक्स्ट वीक दैट सर्टिफिकेट विल बी इन माय हैंड। सो एक मैं क्वालिटी कंट्रोलर बन गया, जो इंडियन स्टैंडर्ड तो हम फॉलो करते ही है, बट
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मैंने एंट्री की। सो मुझे लगा कि एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फॉर सिविल के लिए, बट सिविल के लिए थोड़ा सा इसमें जो डीप नॉलेज, डीप टेस्ट नहीं होते जितने की मैकेनिकल के होते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो मैकेनिकल वाला होता है, क्योंकि मैक्सिमम मशीनरी रहती है और बहुत एनडीटी टेस्टिंग रहती है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, बहुत सारी ऐसे माइनर माइनर टेस्ट होती है जिससे फॉल्ट रेक्टिफाई हो जाए। और गल्फ कंट्री इसीलिए आगे है क्योंकि वो ऑल सर्टिफाइड इंजीनियर्स, दे रिक्वायर्ड सर्टिफाइड इंजीनियर्स। सो सर्टिफिकेशन मिल गई, मैं घर आ रहा था। सडनली कहीं आने के बाद मैंने 4 महीने के पहले बीएचएल में अप्लाई किया था, फिर से वैकेंसी निकली थी, मैंने अप्लाई किया। दैट टाइम सडनली इंटरव्यू कम्स, एग्जाम कम्स, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, फिर से पुराना एम्प्लॉय था मैंने ज्वाइन किया। सो करंटली ज्वाइन करने के बाद मुझे फिर से मैं सोलर फील्ड में आ गया। यहाँ पे अभी मैं उस्मानाबाद में हूँ। महाजन को, जो महाराष्ट्र की जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनका 50 मेगावाट का उस्मानाबाद में प्रोजेक्ट है जो बीएचएल को मिला, और वहां एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर करके वर्क कर रहा हूँ। सो ये मेरी अब तक की करियर जर्नी रही है। बट जितना भी मैंने सीखा, ये करियर जर्नी में सीखा कि खुद को अगर सफल करना है या खुद को टैलेंटेड बनाना है तो आपको फर्स्ट थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं ना 5 मिनट में कर लूंगा, 5 मिनट में कर लूंगा, वो 5 मिनट लाइफ से निकाल देना है। उसके बाद थिंकिंग आप चेंज करेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप नॉलेजेबल पर्सन होगे। सो वंस यू गेट नॉलेज, देन योर वैल्यू इन द मार्केट विल बी इंक्रीज। यू नो शेयर मार्केट, the share market is depend on the market capital of that company. It will rise and it will fallen. So अगर हमारा नॉलेज बढ़ता है तो हमारा मार्केट में हमारी कीमत बढ़ती है। हमारी कीमत इन द सेंस हमें जॉब के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि ही इज अ क्वालिफाइड सर्टिफाइड, फर्स्ट ही इज अ बीटेक और डिप्लोमा, ही इज अ सर्टिफाइड इंजीनियर फ्रॉम एनएससी और व्हाटएवर। अब यही पॉइंट है, मैं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के बारे में बोलता हूँ। हालांकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट कई लोगों का मानना है कि हमें पुणे जाना है, वहां पे कोर्स करना है, उसके बाद हमें जॉब मिले। बट ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आज के एट द टाइम जो भी लोग फाइनल ईयर्स में है, आगे का 1 साल का क्या प्लान करना है, किस फील्ड में जाना है, यू हैव टू डिसाइड नाउ, राइट नाउ, यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ। अदरवाइज आप 5 साल पीछे चले जाएंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, प्लेस छोड़िए, अपनी जगह छोड़िए, एक सर्टिफिकेशन बाहर जाके कीजिए, टेस्टिंग का कोर्सेज कीजिए, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसमें सिक्योरिटी नाम का साइबर सिक्योरिटी एंड और एक सिक्योरिटी होता है जो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के लिए जॉब्स ओपनिंग है, वहां पे सर्टिफिकेशन के लिए वहां पे कीजिए, वो सर्टिफिकेशन कीजिए। आपको इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑफर आएगा। बट आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद को वो बनाना पड़ेगा, उस लायबल बनाना पड़ेगा कि एक आधी कंपनी में अगर वैकेंसी निकलती है, बंदा आता है, इंटरव्यू देता है, चले जाता है। अगर आप घर में अभी भी बैठे हो, अभी भी आप सर्च नहीं कर रहे हो, तो आप और पीछे 5 साल पीछे चले, आप आज 5 साल पीछे हो। इसलिए फाइनल ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट योर गोल। हमें किस फील्ड में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी ईयर इंडिया जनरेट लॉट्स ऑफ बिलियंस इंजीनियर्स, क्योंकि लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए। आप अगर ये थिंकिंग में है कि आई एम ओनली इंजीनियर, I have done my engineering and I will get a job, that will not possible at that time. And you know this COVID pandemic situation is currently going on. Lots of job will lost, all the people. Lives are lost due to this pandemic, due to corona. So मार्केट चलता होते रहेगा, कंपनियां आएगी, कंपनियां बंद होगी, लेकिन हमको उस लायबल बनाना है कि किसी भी कंडीशन में हमें जॉब मिलना है। We have to prove yourself
You have to make as a knowledgeable person in that way that another company will hire you directly. आपके ऊपर naukri.com से आंख रहती है। जब आप naukri.com में अगर बनाएंगे अकाउंट्स, उसमें सीवी शेयर कीजिए। जितने भी बड़े बड़े कंपनियां से उनकी कंसल्टेंसी रहती है, वो कंसल्टेंसी आपके ऊपर वॉच रखती है। सडनली एक रिक्वायरमेंट आ जाता है कि हमें कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, उसको सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। सो वो सडनली आपका naukri.com खोलेंगे, सीवी चेक करेंगे, तुरंत आपको मेल करेंगे। बट मैक्सिमम लोग नॉर्मल वे से मत लीजिए। फ्री जॉब अलर्ट्स, www.freejobalerts.com, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया, ऑल स्टेट्स, डिफेंस, इंजीनियरिंग, पीएसयू सेक्टर, सभी के जॉब्स आपको मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो आप इंटरनेट और मोबाइल का यूज एक पर्टिकुलरली नॉलेजेबल बेसिस के लिए कीजिए। बड़े बड़े लोग हुए हैं, मोक्षगुंडम सर, विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम, ये हमारे बड़े इंजीनियर थे जो कि सिविल इंजीनियर थे। उनके नाम पे अब इंजीनियरिंग डे, इंजीनियर्स डे जो मना रहे हैं। सो प्राउड फील करना है कि वी आर इंजीनियर्स, क्योंकि नेशन डेवलपमेंट में सबसे अगर किसी का अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो इंजीनियर्स मेक द वर्ल्ड इसीलिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि उतना वो कंट्रीब्यूशन। मोक्षगुंडम सर जो सिविल इंजीनियर थे, तब मैसूर एक राज्य हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, अभी का कर्नाटक जिसको बोलते हैं, वो वहां के मैसूर राज्य के दीवान मीन्स आज के सीएम बने थे। वहां के राजा ने उनकी क्वालिटी जज ली कि ये तो मैसूर का बंदा है, इसने बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं, बड़े बड़े जो हैदराबाद में जो बाढ़ की स्थिति आती थी पहले, अभी हैदराबाद में बाढ़ नहीं आती, हैदराबाद में बाढ़ कभी नहीं आती है, बट पहले बहुत बाढ़ आती थी। रामा मोक्षगुंडम सर ने वहां पे ऐसा डिजाइन दिया कि वहां पे अभी मूसी नदी को कभी बाढ़ नहीं आती है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली ड्रेन किया, डिजाइन किया, एक सिटी को टाउन प्लानिंग विथ सैनिटेशन एंड ऑल, इसके हिसाब से इरिगेशन के पर्पज से उन्होंने डिजाइन किया। उनका नाम इतना वर्ल्ड बेसिस पे हुआ था कि वहां के जो राजा थे मैसूर के, उन्होंने उनको बुलाया और मुख्यमंत्री पद दिया और अपना मैसूर डेवलप करने के लिए बोला। 1961 में उनका जन्म हुआ था। 1955, 1981 को उन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट किया पुणे से। नासिक में वो असिस्टेंट इंजीनियर करके ज्वाइन हुए थे इन पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, as from assistant to CM, and he got 1955 में उन्होंने भारत रत्न पदवी दी गई। 1861 में उन्होंने जन्म लिया। 1961 में एग्जैक्ट 100 इयर्स उन्होंने लाइफ अपनी रन की है, जी है। बट जब से वो सिविल इंजीनियर बने, जब से वो इंजीनियर बने, उन्होंने अपनी जर्नी का पूरा नेशन डेवलपमेंट के लिए लगा दिया। सो बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं हमारे पास। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे है जो कभी अपने आप को इंजीनियर, कभी अपने आप को साइंटिस्ट, कभी अपने आप को राष्ट्रपति नहीं कहलाया। उन्होंने बोला कि आई एम अ टीचर, मुझे एक टीचर की तरह ट्रीट कीजिए, बिकॉज मुझे 10-12 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत अंदर से फील होती है कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, उनका फ्यूचर में ब्राइट करूं। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरे से एक ब्राइटनेस निकलनी चाहिए, नॉलेज की एक रेडिएशन निकलने चाहिए, जो कि बच्चों के माइंड से निकल के होने के बाद उनका एक प्रॉपर उनका एक करियर डिजाइन होना चाहिए। एक नॉलेजेबल पर्सन विल गो आउट फ्रॉम माय रेडिएशन, ऐसी उनकी सोच थी। इतने बड़े फादर ऑफ नेशन बोलते हैं उनको मोक्षगुंडम सर, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, फादर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं मोक्षगुंडम सर को, ऐसे नहीं बोला जाता। एक स्मॉल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था। 12 साल की उम्र में उनके फादर डेथ कर गए थे। एक अकेले संतान थी उनकी माँ को। उस दौर में उन्हें उतने कठिनाइयों में उन्होंने इतना कुछ डेवलप करके दिखाया। सो ये मेरी जर्नी थी और मैंने आपको बहुत कुछ, मुझे लगता है बहुत तो कुछ नहीं बताया, बट एक खुद को डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, सर्टिफिकेशन के पीछे भागो, सॉफ्टवेयर कोर्सेज करो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑल ब्रांचेस हैविंग सॉफ्टवेयर कोर्सेज। आपकी सॉफ्ट स्किल बढ़ाओ, बट सॉफ्ट स्किल के साथ एक
हार्ड वर्क अगर आप करेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी चीज के पीछे आप मुझे ये इसमें जाना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, तो मुझे उसी लाइन में जाना है, वही काम करना है, वहीं पे अपना सारा दिमाग जो है वो प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्टर की तरह। जो रेडिएशन अगर आप किसी, वो बोलते हैं ना कि किसी दिल से अगर शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात से मिला के, तो वैसा वैसा है। आई एम नॉट अ बॉलीवुड एक्टर, बट वो सच में है। अगर आपको मैं एक स्पेशल टिप्स देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की एक बिल बायोग्राफी है, वो जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए नहीं, जरूर हेडफोन लगा के सुनिए। आपको एक मन में करंट मिलेगा कि एक बंदा कैसा था। आई एम नॉर्मल पर्सन, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए हैं कि जो जीरो माइनस से निकले और 200 प्लस में चले गए। आज हम अगर उनका नाम लेते तो वी हैव टू, मन करता है कि सैल्यूट करें उनको। ऐसे ऐसे लोग हमारे जनरेशन में हैं। सो नेशन डेवलपमेंट की तरफ, अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करता हूँ, बट मैं अपने नेशन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरे भारत के लिए काम कर रहा हूँ। ये आप अपने मन में सोचना चाहिए। आप 1-2 साल का अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है, प्रिपरेशन चालू रखिए वन हैंड, बट अदर हैंड यू हैव टू गो ऑन प्राइवेट हैंड। आपको प्राइवेट सेक्टर से काम चालू करना है, अगर आपको सीखना है, क्योंकि डोंट सिट लायबल एट होम। 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कीजिए, 1 साल, सिर्फ 1 साल ज्वाइन कीजिए, नॉलेज लीजिए, देन रोड्स इज पाथ इज योर्स एंड व्हीकल इज योर्स एंड यू आर द ड्राइवर ऑफ योर करियर। आपको जहां जाना है किस्मत आपको लेके जाएगी, बट हार्ड वर्क करना है और आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला मदद करेगा। ये मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है कि मैंने हार्डवर्क तो किया होगा, बट मुझे ऊपर वाले ने भी सपोर्ट किया। इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मेरे माता पिता की वजह से मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे माता पिता, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशल थैंक यू स्वप्निल कि आप इंजीनियर थे, और स्वप्निल सर के माध्यम से मैं आपके पास जुड़ चुका, और कुछ मैं 0% और 1% में मेरा नॉलेज आपको बांट सका। सो स्पेशल थैंक्स टू स्वप्निल सर। आई एम प्राउड टू बी आई एम सिविल इंजीनियर। ओके, थैंक यू अमल। बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये पूछे हैं कि कौन से सर्टिफिकेशन किए जाने चाहिए, ओके, और कौन सी ब्रांच बेटर है, सर्टिफिकेशन कौन से करने चाहिए, और गेट जरूरी है क्या आपके भेल में एंट्री लेने के लिए? सर देखिए, अभी क्या है, नॉर्मली ऑल पब्लिक सेक्टर, ऑल इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर इंजीनियरिंग पे आपको ज्वाइन करना है तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये सबको पता है। बट गेट इटसेल्फ इट्स ए एंट्री, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर है जो विदाउट गेट, एक ओनली इंजीनियरिंग एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, एग्जाम पे बेसिस पे आपका चयन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। सभी बैंक, सभी गवर्नमेंट सेक्टर, सभी प्राइवेट सेक्टर, ऑल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर। आप बोलते हैं कि आईटी और कंप्यूटर की गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है। You have to find every government having one IT and electronics and computer engineering is required. आप सोचिए कि कहाँ रिक्वायर्ड है। अगर आप आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर है, आपको अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में आप पक्का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी आपको हायर कर लेगी। आपका स्किल बढ़ाइए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपको सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिली हुई है। बस सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्वालिटी कंट्रोल के बिहाफ में आप कोर्सेज कीजिए। इलेक्ट्रिकल है तो स्काडा कीजिए। अगर एक किसी भी प्लांट को जनरेशन करना है, जनरेशन करने के बाद वो कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन लगती है, स्काडा उसे हम बोलते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल काम भी जानता हूँ क्योंकि मेरा ये 10th प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्रोजेक्ट का। सो मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी है, क्योंकि हमारे इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी सब फील्ड का काम होता है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है। सो मुझे पता है।
सो स्कैडा का कीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से तो पावर सेक्टर में जाइए। पावर सेक्टर के आप सबको बता देता हूँ कि अभी अगर आपको जाना है तो पावर सेक्टर इज द बेस्ट वे। इंडिया थर्मल पावर सेक्टर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ रही है। सो पावर जितने भी कोर्स ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, उन्होंने पावर सेक्टर के कोर्सेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके बाद आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहिए। अगर आपको फॉरेन जाना है तो आपको, अगर मैकेनिकल सिविल है तो पक्का एनडी डेसिबल करके इंस्टीट्यूट है, वहां से 3-4 महीने का कोर्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा विथ ऑल द टेस्ट। आपको खुद करना पड़ेगा, थक जाएंगे बट आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद नॉलेज मिलेगा, वहां पे इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज मिलेगा। और आप सर्टिफिकेट, एक बार सर्टिफिकेशन मिल गया, वो इंस्टीट्यूट आपको जॉब दिलवाएगी। बहुत बहुत मैकेनिकल का इंडिया में थोड़ा सा देखो रिसेशन चलते रहता है, कभी सिविल, कभी मैकेनिकल, कभी इलेक्ट्रिकल, कभी आईटी, डिपेंड्स ऑन द नीड के हिसाब से हमारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, जॉब्स बंद होते हैं। बट ये नहीं सोचना है कि मैं इंजीनियर हूं तो मुझे कुछ नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी दूसरे फील्ड में जाना है तो मैनेजमेंट में जाइए, अपना बिजनेस खोलना है बिजनेस खोलिए, बट पॉजिटिव वे में जाइए और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। अगर आप इंजीनियर है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों, या इंजीनियरिंग की जॉब मुझे नहीं करना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे बिजनेस डालना है, मुझे इंडस्ट्रियल बनना है, तो आपको उस हिसाब से, उस वे में जाना है, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करना है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे जॉब करना है, तो मैं उसी इसमें जाऊंगा। नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है बट मैं मैनेजमेंट करूंगा, मुझे बिजनेस डालना है, मैं उधर जाऊंगा। तो जॉब करना है तो आपको बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है आपको, ऐसा है। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चंस है? डायरेक्टली आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर, आपने कुछ देर पहले एक न्यूज़पेपर के बारे में बताए थे जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में वीकली वो पेपर आता है। सर, वो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? देखिए, अगर आपको प्राइवेट फॉरेन जाना है, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना है, ऑयल एंड गैस में जाना है, तो असाइनमेंट अब्रोड एक आप इंटरनेट पे भी आपको मिलेगा, असाइनमेंट अब्रोड। उसमें जितने भी अब्रोड लोकेशन के जॉब्स है वो उसमें आएंगे। अगर आपको इंडियन, और दूसरा है naukri.com, उसके बाद लिंकिंग है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो माझी नौकरी करके एक मराठी पेपर आता है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है हर वीक का, एवरी वीक। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कौन सी वैकेंसी कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में आपको सब पता चल जाएगा, ऐसा। सर, और आपने वो 2 कोर्सेज के बारे में बताया था। कोर्सेज यानी कि सर वो एकेडमी है, एक जो है केरल में है, एक है एपी में। सर, उसका एक और बार आप नाम रिपीट कर सकते हैं क्या? देखिए, एपी में जो है, तेलंगाना में जो है, हैदराबाद में जो है, वो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट वहां डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी नहीं, वो स्पॉन्सर के थ्रू मिलेगी। जब बट आपको करना है तो मुझे बताइएगा शॉपिंग सर के माध्यम से। और सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को अगर क्वालिटी कंट्रोल ऑडिटर बनना है तो उन्होंने केरला में पटम्बी करके एक जगह है, वहां पे एनडीई डेसिबल ये यूके बेस ये इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। वहां का एक ब्रांच ओनली इंडिया में है, वो है पटम्बी केरला में। अगर वहां पे भी आपको एडमिशन चाहिए, जिसको जिसको चाहिए वो शौकीन सर को बताइए, तो मैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं आपको सब बता दूंगा। थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चंस है? आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाइस। अदर देन सिविल, मैं सिविल वाला हूँ तो ऐसा नहीं, कोई भी पूछ सकता है, मुझे कुछ भी पूछ सकता है। और कोई क्वेश्चंस थे? आई थिंक सो जो अभी हमने पढ़े नहीं है, बाकी और एक बात पूछ सकते हैं आप स्वप्निल सर। हाँ, मैं और एक बात सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आईएएस बनना है या बड़ा अधिकारी सिविल सर्विसेज में जाना है, अगर आपका मोटो है, एम है, तो आप बिल्कुल वहां प्रिपेयर कीजिए। बट किसी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन का आप करना है, बट एक सोचना है कि मैं अगर 1% फेल हो जाता हूँ, आई हैव अदर हैंड टू गो ऑन दैट वे। एक प्राइवेट जॉब
और एक ऐसा कुछ करके करना है कि मैं यहाँ पे फेलियर हुआ तो मैं यहाँ जाऊंगा। लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, लाइफ फ्रस्ट्रेटली नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे, मैंने खुद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, NPCIL, BPCL, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, एग्जाम देके इंटरव्यू देके मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा इस कंपनियों में हो जाएगा, बट मेरा नहीं हुआ। तो कभी कभी लक बाय चांस भी होता है, किस्मत भी साथ नहीं देती। तो एक प्राइवेट सेक्टर या कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा अदर हैंड में रखना है कि हमारा इंजीनियरिंग करियर बर्बाद नहीं होना है। अल्टीमेटली हम जॉब कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, एक हमारा फाइनल मोटो है अर्निंग फॉर लिविंग, ठीक है। तो अगर हम इंजीनियरिंग में हमें जॉब नहीं मिलता है तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, सो उस माध्यम से हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं है मुझे IAS बनना है, मुझे UPSC बनना है, सिविल सर्विसेज में एंट्री करना है, मैं पढ़ाई करूंगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एबिलिटी है, आप एबिलिटी परस्यू करते हो, बट अननेसेसरी कभी होता नहीं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने 3 कंपनियों में बैक टू बैक एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू दिया, बट मेरा नहीं हुआ। सो वो इस बात का नहीं है, बट मुझे उससे भी सीख मिली कि आपको कंपटीशन में टिकना है तो बहुत हाई लेवल पे सोचना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तब जाके नॉलेज आएगा। नॉलेज आएगा तो आपका पैसा डबल, ऐसा है। सो आई सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। बाकी राइजिंग इंजीनियर से आप अभी आप बेस्ट लेवल पे है, आगे कैसे जाना है, क्या जाना है, ये आप ही डिसाइड करना है। गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कहाँ जाना है आपको डिसाइड करना है, कहाँ काम करना है, कितना कमाना है, ये करना है। डॉक्टर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर बोलते थे कि अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा रहो। उसके लिए थिंकिंग चेंज करो, जो कि मैंने बोला था कि 5 मिनट ये बंद करो। 5 मिनट के लिए यू आर गोइंग फॉर बैक साइड फॉर 5 years। सो बी कॉन्फिडेंट, बी प्रेडिक्टिव, इतना आपको करना है बस। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट मैं जो मैंने फेस किया वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मार्केट में टिकना है, आपका शेयर प्राइस आपको खुद का बढ़ाना है, तो यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन अदर। तब आपकी वैल्यू मुझे, आपकी वैल्यू मार्केट में आएगी और आपको जॉब मिलेगी, आपको लोग पूछेंगे, ऐसा है। ओके, और किसी का क्वेश्चन है क्या गाइस? किसी का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Hello, sir. Am I audible? कोई भी पूछ सकता है। हेलो, हाँ, अंकिता बोला। So, हाँ अंकिता, टेल मी। what are the resources from where we can learn PLC and SCADA courses? SCADA courses, you have to go actually in Hyderabad. There are lots of technical institute. They have give SCADA training on the certification. The SCADA certification courses is there. So you have to go. You have to search on internet. You have to list out that technical institute name, and you personally you call them and you get all the information on from that. Okay, sir. Thank you. Any Lots more of questions, technical guys? institute is there. कोई भी पूछ सकता है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। पूछना है, पूछना। अगर आप पूछेंगे नहीं, आपका डाउट्स क्लियर नहीं होगा। जो हमारे टीचर्स हमको बोलते थे कि अगर आपका डाउट से क्लियर कीजिए, हमको कब याद आता था? जब हम पेपर सॉल्व करते रहते थे और हमको आता नहीं था क्योंकि हमने डाउट कभी वो क्लियर नहीं किया और उसकी वजह से हम फेल होते थे या हमको कम मार्क्स मिलते थे। सो डाउट नेवर बी क्लोज्ड, इट विल बी ओपन ऑलवेज। सो डाउट आपका क्लियर कीजिए। हम भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहिए आपको। देन ओनली यू विल गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। अदरवाइज अरे यार कर लेंगे, इंजीनियरिंग किया है, जॉब वॉब मिल जाएगा। सो अब ये लेवल जो है वो क्रॉस कर चुका है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स है वो स्किल्ड इंजीनियर के लिए है। आप अगर सोचेंगे कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, मुझे ऐसे ही जॉब मिल जाएगा, सो ये थिंकिंग आप दिमाग से निकाल दीजिए। सैलरी चाहिए आपको,
सैलरी मेरी है जो एज पर DHL नॉर्म्स रहती है, उस हिसाब से मुझे मिलता है। कुछ अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो प्लीज। एक्चुअली मैं सबको बात ये बोलना चाहता हूँ, किसी का एज, लड़की को एज और किसी एम्प्लॉय का सैलरी कभी नहीं पूछना चाहिए। आपका सैलरी आपको डिजाइन नहीं करेगा, आपको डिजाइन बनेगा। आपको मैंने 8,000 से स्टार्ट किया, मेरा अफ्रीका का पैकेज 14.3 लाख था, स्टडी इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज। सर एक क्वेश्चन है, स्टडी कंसिस्टेंटली कैसे आपने मेंटेन की? सर देखिए, मुझे तो एक्चुअली क्या है, मुझे जॉब लगना जरूरी था, तो मेरे हाथ में जो भी मिलते गया, छोटी मोटी बुक मिलती गई। एक तो 2014 में मैंने IAS की एग्जाम प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपेयर मुझे देना था, जस्ट देखना था कि एग्जाम कैसी होती। तो मेड इसी की मैंने नोट्स ली थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे। उसके बाद अगर आपको एक चाहिए तो एक एप्टीट्यूड की एक मराठी ऑथर है जो PWD में एक इंजीनियर है, उनकी है, तो एक एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट रीजनिंग है, वो अगर खरीदना चाहते थे तो मैं आपको, स्वप्निल सर को मैं बुक का फोटो भेज देता हूँ, वो ले लीजिएगा। एक बुद्धिमत्ता तासनी करके रीजनिंग का ये है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको उसमें डिस्क्रिप्ट किया हुआ है, तो वो आप ले सकते हैं। कोई भी देखिए, बुक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप बुक को ओपन करके कितनी बार पढ़ते हैं, उसका नॉलेज कितना लेते हैं, आपको सारे मैटर आप ऑनलाइन मिल जाते हैं, खर्चा करने की जरूरत नहीं। सो व्हाई यू आर गोइंग टू वेस्ट योर मनी एंड टाइम? मार्केट जाएंगे, बुक लेके आएंगे, अरे आज जो चाहिए वो ऑनलाइन मिलेगा आपको। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, एग्जाम गाइडर मिलेंगे आपको ऑनलाइन, ऐसा है। देखिए, डे बाय डे एजुकेशन पॉलिसी चेंज होगी, डे बाय डे इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा या कम होगा, इंडस्ट्रीज कम होगी ज्यादा होगी, बट हमारा नॉलेज हमको इस हिसाब से रखना है कि वी आर स्टैंड विद दैट लेवल। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स इंजीनियर्स। आप फ्यूचर हो भाई इंडिया का, आपको चुप नहीं बैठना है। नारी शक्ति बोलते हैं तो क्या आप चुप क्यों रह रहे हैं? ओनली वन गर्ल्स आस्क्ड वन क्वेश्चन ओनली, व्हाट अबाउट अदर्स? गर्ल्स है कि नहीं है? आप नारी शक्ति, आप दुनिया बदलने की चाह रख सकती है। वर्किंग आवर्स नॉर्मली मैं सवेरे 9 बजे निकलता हूँ, गाड़ी आती है, मुझे गाड़ी लेके जाती है, लंच वहीं पे होता है, सुबह चाय नाश्ता सब कंपनी, वो टेंडर दिया रहता है एक प्राइवेट कंपनी को, सारा वो प्रोवाइड करती है, गाड़ी का टेंडर दिया हुआ रहता है, गाड़ी भी हमको लेके आती है, लेके जाती है, लेके छोड़ती है। नॉर्मल आवर्स है वर्किंग आवर्स, सवेरे 9 बजे जाते हैं हम, 5 बजे निकल जाते हैं। अगर किसी दिन वर्क लोड ज्यादा रहा तो 6, 7, 9, 10। सिविल से हूँ तो मैंने रात में ये साइड पे 13 बजे तक काम किया, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग था, बहुत बड़ा था, क्लाइंट का प्रेशर था, तो मुझे वो करना पड़ा। सर आप लिंक्डइन पे हो? आपको वर्किंग आवर्स नहीं देखना है, आपको सैलरी नहीं देखना है, आपको कंपनी में नॉलेज कैसे मिलता है वो देखना है, बिकॉज आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो। सो डोंट बॉदर अबाउट मनी। 1 रुपए की कीमत भी आपकी बहुत बड़ी होती है अगर आप नॉलेज लेके कमा रहे हो तो, ऐसा है। सो डोंट बॉदर अबाउट योर फर्स्ट सैलरी। फर्स्ट सैलरी अगर 8,000, 2,000, 4,000 भी हो ना, तो 2 लाख 2 करोड़ से ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने पसीने की मेहनत की कमाई होती है आफ्टर इंजीनियरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, एंड आई विल स्पेशल थैंक्स टू सपनील सर। वन क्वेश्चन है अमोल सर, हेलो लिंक्डइन पे और क्या बोल रहे हैं? व्हाट सर आप लिंक्डइन पे हो? लिंक्डइन मैं लिंक्डइन पे हूँ, बट अभी बहुत दिनों से मैंने अपडेट नहीं किया उस पर। मेरा नाम तो अमोल गोयर है, उस हिसाब से देख सकते हो। बट आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि naukri.com पे जरूर अपना CV पोस्ट कीजिए, और फ्री जॉब अलर्ट्स पे डेली गवर्नमेंट जॉब देखते रहिए, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए ट्राई कीजिए। ओके, और एक क्वेश्चन है कि जो ओपनिंग्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कैसी फाइंड आउट करना? अंकिता का क्वेश्चन है फिर से।
देखिए अंकिता, क्या होता है समटाइम्स naukri.com में स्कैम बहुत होते हैं। अब मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि जब मुझे उतनी सैलरी का पैकेज उन्होंने दिया, जब मैं दुबई की कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के पहले मैं बोला यार ये कंपनी इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे सकती है, जब मुझे ओनली 4-5 साल का एक्सपीरियंस था। मैं बोला इतना इतना बड़ा पैकेज कैसे दे सकता है। सो मुझे लगा फेक है, कोई इस मेरे समझ जो भी स्कैम हो सकता है कि मुझे मेरे से पैसे मांगे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो कंपनी की प्रोफाइल नेट पे चेक की, जो मुझे जेन्युइन लगी। उसके बाद मैंने उनके मेल्स, एक एक मेल्स चेक किए कंपनी के बारे में, कंपनी के हेड ऑफिस से कहाँ पे है वो मैंने चेक किया। और मैंने एचआर से लगभग 1 वीक उनसे पूछा कि आपकी कंपनी क्या है, आप क्या करते हो क्या नहीं। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। और मैंने जब डायरेक्टर को डाउट था कि अगला वाला बंदा अपनी कंपनी फेक समझ रहा है, जब डायरेक्टर ने मेरे से बात किया, देन आई पोस्टेड टेंडर माय रिजाइन लेटर टू बीएचईएल एंड आई ज्वाइन। सो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। कोई भी ऑफर आता है तो ऐसा नहीं कि ऑफर लेटर आया तो आपको यानी कोई जॉब ऑफर आया तो वो फेक ही है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ वेरियस मेथड्स, आप किसी भी चेक कर सकते हो, ऐसा है। ओके, तो एनी और क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप पर्सनली बात कर बोल सकते हैं, या फिर अभी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं गाइस, या फिर मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म के थ्रू आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस, फीडबैक फॉर्म जो मैंने डाला है उसमें आप लिख सकते हैं। और कल का भी सेशन रहने वाला है, कल 7 o'clock को है। और कल का सेशन कल के सेशन में एक्चुअली 3 सेशंस होने वाले। कल के डे में 3 सेशंस रहेंगे। आपका थोड़ा सा हेवी डोज रहेगा, 7 to 9 PM तक रहेगा। सो कल के 3 सेशंस रहेंगे, इसलिए आप तैयार रहना तीनों सेशंस करने के लिए। और गाइज आपको जो भी नॉलेज मिला है, नॉलेज का एक एग्जैक्टली फीडबैक दो। आपके जो थॉट्स है वो थॉट्स किस तरह अभी क्रिस्टल क्लियर हुए, जो भी आपके जो डर था आपकी इसमें जॉब्स का वो कैसे किस तरह निकला है, ये सब कुछ आप वहां पे फीडबैक फॉर्म में डालो। और थैंक्स टू अमोल सर जिन्होंने अभी आपको एक बहुत अच्छा सा अपना बैकग्राउंड पूरा बताया कि एक डायरेक्टली आप विदाउट गेट भी बेल जैसी कंपनी में जॉब करने जा सकते हैं, और बेल जैसी कंपनी छोड़ के फिर से बेल जैसी कंपनी में फिर से जॉब कर सकते हैं। यानी एक बार छोड़ा उन्होंने, वो अब्रॉड गए, अब्रॉड से फिर से उन्होंने ज्वाइन किया। तो इतना बड़ा लक बहुत कम लोगों को मिलता है, और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं कि जो पीएसयू कंपनी है वो छोड़ के फिर से ज्वाइन कर। तो एक लक भी है, एक हार्ड वर्क भी है, एक नॉलेज है। जो वो बोल रहे हैं कि 5 मिनट्स अगर आपने 5 मिनट्स पर डन नहीं कर दिया तो 5 मिनट्स आपको 5 इयर्स बैक ले जाते हैं। यस एग्जैक्टली, ये सही बात है उनकी। तो आप डिसीजन जो है जल्द से जल्द लो, हार्ड वर्क करो, यही उनका बोलना है। गाइस यही करके हम यहाँ पे आज का टॉक खत्म करते हैं, और कल हमारा टॉक रहेगा 7 o'clock को फिर से, ओके, एक अलग टॉपिक पे। तो कल के टॉपिक्स 7 o'clock को ही है। अलग अलग इससे लोग आएंगे, यानी अलग अलग सेक्टर से लोग आएंगे। ओके, स्टार्टअप सेक्टर से भी लोग हैं, और अगेन इंडस्ट्री सेक्टर से भी लोग हैं, जो मेट्रोस जो बन रहे हैं वहां से भी लोग हैं। तो आप जो स्पीकर्स है वो स्पीकर्स दोनों जगह से है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन से एंड स्टार्टअप से। तो स्टार्टअप क्या होता है, किस तरह होता है, वो आईटी सेक्टर्स वालों को बहुत सारी हेल्प होगी उसमें से, कि स्टार्टअप्स किस तरह चल रहे हैं बेंगलुरु में, स्टार्टअप किस तरह अभी सेटअप हो रहा है, और एक्चुअली अभी की सिचुएशन स्टार्टअप्स के लिए क्या है, ये सब कुछ आपको कल के सेशन में मिलेगा। तो गाइस आई होप सो कि आपने ये जो सेशन है, ये सेशन आपने होपफुली एंजॉय किया होगा, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू गाइस। Thank you very much, Swapnil sir. Thank you everyone for the listening my this session quietly. Thank you very much.